Hi, I'm back with another video. So, what is this that you see on your screen right now? This is your 10th CBSE marks sheet. This is how your results are going to appear in front of your eyes. And I want you to manifest this for you. And I'm not trying to flex by the way, क्योंकि I know तुमको इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे. Cause मेरे अच्छे हैं लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं. But अच्छे हैं भाई, ठीक है, अच्छे हैं. But I know that you will do better than this. So I just want this to be seen by all of you क्योंकि if I can do it, trust me, each and every one, single one of you can do it. क्योंकि I was always an average student, so I can understand the struggles that we all face. But all that matters is what comes out in the end, and this is what's going to come out in the end. A great percentage, 95% or plus. So let's make that happen. If you're seeing me for the first time, I am Ayushi and I'm a third year MBBS student right now. But yeah, 10th में मेरे 69% आए थे प्री बोर्ड में, in the first pre board, and then 74 in the next. And ये देख के तो मतलब होप वो सब गायब हो चुका था दुनिया से. But you know, all that matters in the end is what you think of yourself. If you think that you can do it, you will be able to do it. But if you let the world dictate for you कि ठीक है, अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि मेरे तो 74 आए, 90 तो दूर दूर की बात है, मुझसे नहीं होने वाला, भाई नहीं आते. सो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. सो दैट्स व्हाट आई एम हियर टू टेल यू कि इट डजंट मैटर हाउ मच मार्क्स यू गेटिंग राइट नाउ. ऑल दैट मैटर्स इज आर यू विलिंग टू टेक द बेट ऑन योर सेल्फ. सीधी मुझे प्री बोर्ड में 40% आ रहा है, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है. कैन आई एक्चुअली गेट 90%, 95% प्लस इन बोर्ड्स? Say it with me. Yes, I can, and yes, I will, because I told you in the last video as well. Your pre-board marks don't dictate the outcome of any exam. Trust. तुम करोगे भाई, तुम करोगे. जिस दिन तुम लोग का रिजल्ट आएगा ना, come back to this video and drop your results in the comments. I'm waiting to see, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे. But I know, bro. I know. I have faith in you. I know you'll do well. I am here for all of you. Elder sister energy to all of you. क्योंकि मुझे पता तुम फोड़ोगे, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, प्लीज़ बताओ क्या करूँ, क्या करूँ. आई फील लाइक आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग, सब भूल जा रहा हूँ, प्लीज़ बताओ क्या करूँ. मैथ से डर लग रहा है, आई एम स्कैर्ड ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स. एसएसटी के लिए कुछ टिप्स दो, इंग्लिश के लिए कुछ टिप्स दो. इज इट पॉसिबल, कैन आई क्रैक द एग्जाम? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सेल्फ डाउट, आई एम फिल्ड विद सेल्फ डाउट, आई फील डीमोटिवेटेड. हाउ डू यू प्रेजेंट द पेपर? रिविजन स्ट्रैटेजी बताओ, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताओ. How do I plan the last 10-15 days? So these were all of your questions. I'm going to answer this at the end. मैथ का I will make a separate video क्योंकि बहुत लोगों ने मैथ के बारे में पूछा है. और honestly मैथ के लिए टाइम है, बट I'm going to drop that video 2-3 दिन बाद. इस वीडियो के 2-3 दिन लाइव जाने के बाद मैं वो वीडियो पक्का डालूंगी मैथ का. सो वेट फॉर इट, क्योंकि उसमें मुझे बहुत चीज़ें बतानी है तुम लोग को, ठीक है. Before I go any further, I'm going to tell you this is my Instagram ID. I'm going to leave the link in the description. मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मतलब it's good that you don't stay on social media, but a lot of you are there on social media and are texting me. So go there and let's make 1,000 followers on Instagram. If you do this, if you do 1,000 followers on Instagram before I post the next video, I think I can come live on Instagram. You know, we can have an interactive session there. You can ask me whatever your doubts are, and I can talk to you. You know, like a 20-minute live session on Instagram, and we'll have a good community. Let's talk and let's take out all the stress and you know spread positivity because I know you can do it. Okay, तो पहला तुम्हारा एग्जाम है इंग्लिश का, ठीक है. इंग्लिश में कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी बताओ क्या करूँ क्योंकि डर लग रहा है. ओके लिसन मी, ये है तुम्हारा मार्क्स डिवीजन. 20 नंबर का तुम्हारा आएगा कॉम्प्रीहेंशन टू अनसीन पैसेजेस. ग्रामर इज़ फॉर 20 मार्क्स, लिटरेचर इज़ फॉर 40 मार्क्स. तो कॉम्प्रीहेंशन तो तुम आराम से फोड़ लोगे. इफ़ यू आर स्टिल अ लिटिल इनसिक्योर एंड इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश and you want to practice, so the way that you can practice comprehension and grammar is by sample papers. This is not something you need to study, this is something that you need to practice. How you practice? You practice by writing. तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा. कितने करो? 3 कर लो. 3 sample papers is enough for comprehension grammar because उसके बाद तुम्हें आइडिया आ जाएगा. और ग्रामर में तुम्हारे वो है एरर करेक्शन है ना तुम लोग को इस बार, 10 नंबर का वो है एंड 12 क्वेश्चंस आएंगे. सो यू हैव 2 चॉइसेस. सो ट्रस्ट मी भाई, इजी होगा एंड यू विल डू वेल. एक चीज़ तुम्हें क्या ध्यान देनी है यहाँ पे, यू हैव टू लर्न लेटर. आई एम श्योर तुम लोग को ऑलरेडी बाय हार्ट होगा लेटर का फॉर्मेट, क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा. तो या वो तुम्हें अगर वो कुछ प्रैक्टिस करना तो लेटर प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार
अगेन 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करो फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर एंड या दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो फॉर दिस पार्ट। लिटरेचर का जो तुम्हारा 40 नंबर का आ रहा है उसमें तो तुम्हारे हैं 2 सीन पैसेजेस, ठीक है। इट्स लिटरली like answers are given in the comprehension, all you need to do is decipher it, but comprehension but literature का वही है, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो ऑल द स्टोरीज और पोएम्स को अच्छे से पढ़ लो, ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा। फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैराथन सेशन देख लो और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो बस। और इंग्लिश में क्या करना है, रीडिंग प्रैक्टिस। तो पूरे इंग्लिश पेपर के लिए तुम क्या करो, कम से कम 3 पेपर करो। टाइम है तो 5 करो, लेकिन टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 पेपर करो। ये 3 पेपर तुम कोई भी कर लो भाई, PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल, क्योंकि ऑलमोस्ट इज द सेम थिंग, तो तुम वो कर लो। क्योंकि इंग्लिश में दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ये है तुम्हारा टाइम टेबल विच आई एम श्योर यू गाइज आर बाय हार्ट विथ बाय नाउ, तो दिस इज जस्ट देयर फॉर दैट। लेट्स कम ऑन टू साइंस। मुझे साइंस में तुम लोग को बहुत चीज़ें बतानी है। पहली बात तो 20 फरवरी को तुम्हारा है साइंस का पेपर, एंड साइंस में there are 3 पार्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऑब्वियसली बायोलॉजी का आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि तुम लोग क्या हो, बायोलॉजी के मास्टर्स हो, क्योंकि इट्स अ कंपैरेटिवली सिंपल सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी तो तुम्हें अच्छी आती होगी। दिक्कत तुम लोग को कहाँ आ रही है, फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, किस चीज़ की दिक्कत आ रही है? फिजिक्स में दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल्स की। केमिस्ट्री में दिक्कत किस चीज़ की आ रही है? इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की। तो मैं बता रही हूँ तुम लोग को क्या करना है, आई टेल यू एग्जैक्टली। ओके, लेट मी एक्चुअली शो यू एंड टेल यू व्हाट आई मीन। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ पहले फिजिक्स। जैसे हमने एक चैप्टर खोल लिया, लाइट चैप्टर खोल लिया, ठीक है। बाय द वे मैंने कल ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट उस टाइम ऑडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन। सो इसलिए तुम्हें ये दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कल ये सब रिकॉर्ड किया था। तो हाँ, जैसे लाइट चैप्टर है, तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। जैसे ये डायग्राम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, इसको याद करो, ऑब्वियसली आता होगा। नहीं आता है तो करो, टाइम है। और ये जो टेबल है ये तो याद करना ही है हम लोग को। एंड ये सिंपल है भाई, इट्स जस्ट सिमेट्री। यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे तो वहाँ पे, इट्स सिमेट्री। दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू फाइंड द सेम वे। ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से तुम लोग को पता है, ठीक है, वो सब में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मैं क्या बताना चाहती थी तुम लोग को, मैं बताना चाहती हूँ ये, कितने लोगों ने ये पिंक बॉक्स पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में? प्रॉब्ली नॉट इवन 1% ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। NCERT हियर इज वेयर NCERT इज़ अ गेम चेंजर, क्योंकि साइंस में पहली बात, ऑल यू नीड टू स्टडी इज़ NCERT। तो NCERT का जो पिंक बॉक्स दिया है, दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर। और तुम लोग को चैप्टर तो आता ही होंगे इस पॉइंट पे। एक बार इसको पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ क्रेजी गुड NCERT इज, क्योंकि इतना अच्छे से यहाँ पे दिया है, इतने अच्छे से दिया है। सो इसको एक बार पढ़ना, और ये इसको कभी भी गलती से भी स्किप मत करना। तो पहले फॉर एवरी चैप्टर आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज दैट्स गिवन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इन साइंस। वंस यू हैव डन दिस एंड वंस यू आर एक्सपर्ट्स इन दिस, देन गो ऑन टू योर PYQs। इसके बाद तुम क्या करोगे? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहाँ से करोगे? ओसवाल का बुक आता है, मैंने ओसवाल की बुक से किया था, बट काफ़ी हैं ऑथर्स यार, तुम कोई भी ऑथर का बुक ले लो। दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, ओके। तो ऑर्डर इट इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव इट, इफ़ यू हैव इट गुड। सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसमें क्या दिया रहता पता है? इट्स गिवन चैप्टर वाइज। सो ओपन लाइट का चैप्टर एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गिवन एंड सॉल्व इट, कंप्लीट इट। So once you've done exercise and PYQs and you still have time, then what do? You do sample papers. मैंने क्या बताया? पहले क्या करोगे? NCERT के क्वेश्चंस करोगे, फिर क्या करोगे? PYQs करोगे, उसके बाद टाइम मिले तो सैम्पल पेपर कर लेना, और टाइम ज़रूर बनाना सैम्पल पेपर के लिए, कम से कम 3 फॉर साइंस मिनिमम ब्रो, इतना तो करके ही जाओ। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर लग रहा है तो पहले तुम क्या करो? फार्मूला शीट बनाओ। फार्मूला शीट क्या होता है? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट। बट एक A4 शीट लो, उसमें सारे फिजिक्स के फार्मूलाज लिखो, और ज़्यादा है भी नहीं, 5-6 गिने चुने होंगे। इसको लिख लिया, चिपका लो अपने टेबल के सामने, और रोज़ देखो। और एक ही फार्मूला पे तुम्हें कम से कम 10 क्वेश्चन बना के मिल जाएंगे, घुमा फिरा के। लाइक द सेम क्वेश्चन इज ट्विस्टेड इनटू मैनी वेज, सो जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। फिजिक्स में इज द सेम थिंग, एक ही क्वेश्चन का वैल्यू चेंज करके दे विल जस्ट कीप रिपीटिंग इट।
सो वंस यू प्रैक्टिस्ड अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, इवन तो एग्जाम में वो आएगा, बस उसका नंबर चेंज होगा, तो तुम्हारा प्रोसेस सेम होगा, यू विल बी गुड. दिस इज़ फॉर फिजिक्स. फॉर्मूला शीट बनाओ, न्यूमेरिकल की खूब सारे प्रैक्टिस करो, खूब 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 प्रैक्टिस करो. डर भागेगा, डर तुमसे दूर भागेगा. और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा खूब सारे पेपर्स, खूब सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके. तो देखो, पहली बात सुनो 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 सुनो. यहाँ पे कितना टाइम है तुम्हारे पास? 5 दिन का टाइम है. तुम हर दिन एक पेपर सॉल्व करो. तुमने 5 पेपर सॉल्व कर लिए. यू सॉल्व 5 पेपर्स बिफोर योर साइंस एग्जाम, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू. रिविजन ऑब्वियसली 5 डेज है भाई, रिविजन करो. रिविजन की स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है? ये हो गया फिजिक्स का. केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो ईजी. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, फिर तुम फोकस करो कार्बन कंपाउंड्स में, क्योंकि क्या है, रिएक्शंस है. रिएक्शंस तुम्हें याद होते ही होंगे भाई, याद होगा तुम्हें रिएक्शन. क्योंकि है कितने, 5-6 ही रिएक्शंस हैं. और क्या है केमिस्ट्री में तुम लोग को? हाँ, कार्बन कंपाउंड जो तुम लोग को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी उसमें. हाँ, लेट मी शो, वेट. केमिस्ट्री का भी मुझे तुम लोग को दिखाना था. हाँ, क्योंकि तुम लोग को डर लगता है. आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, आई एम नॉट जजिंग यू, आई वाज आल्सो इन द सेम पोजीशन. तो या व्हेन समबडी टेल्स यू नो कि ये करो, तुम लोग को खुद भी आराम लगेगा. ये सब आराम से पढ़ के जाओ, तुम्हें पता है ये सब इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो इट. Allotropes of allotropes of carbon cannot miss this out. Obviously नॉन नेगोशिएबल, ये तो आना ही चाहिए भाई पूरे चैप्टर में. नाम आता ही होगा, ठीक? ये पढ़ो. और ये नॉमेनक्लेचर का टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी. सेम थिंग अगेन, रिविजन का ये टेबल पढ़ो, ये टेबल पढ़ो, पढ़ के देखो, तुम पढ़ के देखो, फिर करो एक्सरसाइज क्वेश्चन. सेम थिंग. आफ्टर दिस इज डन, डू PYQs, एंड आफ्टर PYQs इज डन, यू कैन गो ऑन टू योर सैम्पल पेपर्स और रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस. ठीक है, हो गया केमिस्ट्री. वही बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है? रिविजन करना है. रिविजन कैसे करना है? अगर सारा NCERT पढ़ लिया है अच्छे से तो पेपर्स करो, और अगर NCERT में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तो NCERT पढ़ो. लेट मी टेल यू फॉर सोशल साइंस. Social is subjective. Some people love it and are very good at it, while the others are just scared of it and like don't like the subject at all. I didn't like it at all, but जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो पहले मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था, क्योंकि मुझे बेकार लगता था. तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया एक चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इन यूरोप. मुझे याद है ये चैप्टर जब मैंने पढ़ा था. क्रेजी चैप्टर. तो याद नहीं हो रहा था भाई, कैसे पढ़ोगे, ये हुआ, दिस इवेंट हैपेंड. व्हाट आई डिड इज दैट आई वुड स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ माई वॉल्स एंड यू नो माई वाइट बोर्ड्स एंड माई डोर्स, एंड आई वुड जस्ट स्क्रिबल. तो पूरा चैप्टर में इट्स रिटन ऑन द वॉल्स विथ चॉक एंड वाइट बोर्ड, मतलब क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर. सो आई हैव स्क्रिबल्ड इट. तो लिटरली पूरे दीवार पे मैंने पूरा चैप्टर का एक स्केच बनाया है. मेक स्केचेस ऑफ हिस्ट्री. तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इंडिया में तुम्हारा है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, ये वो डरड़ा. उसके लिए तुम कुछ लाइक वॉट एवर, हाउ एवर यू आर एबल टू रिमेंबर इट. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर इट बाई ड्राइंग समथिंग, ठीक है, ये गांधी जी ने ये गए सॉल्ट लेके, ऐसे ऐसे हुआ. तो ये तुम जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि ठीक है इसमें ये सब हुआ था. तो इधर लाइक दिस और बाई फ्लो चार्ट्स. अगर तुम्हें ऐसे नहीं आता रहा तो तुम फ्लो चार्ट बनाओ, क्योंकि हिस्ट्री इज ए स्टोरी दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. सो व्हाट इज इट? इट्स बेसिकली अ स्टोरी. तो स्टोरी में पहले क्या होगा, पहले राजा आएगा, फिर वो हंट पे जाएगा, फिर वो लायन को मारेगा, फिर वो क्वीन से शादी करेगा, एंड देन दे हैप्पीली लिव टुगेदर. तो इट्स इन अ सीक्वेंस. सो वंस यू लर्न द सीक्वेंस फॉर एवरी हिस्ट्री चैप्टर, यू आर सॉर्ट. Geography, economics, civics. On also social में सारे चारों divisions have equal weightage 20-20-20-20. So you know at least अगर तुम लोग से सब नहीं हो रहा है तो कम से कम 3 में परफेक्ट होके जाओ, और जो चौथा विच एवर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन, उसको तुम कम से कम आधा करके जाओ. तुम टेंशन मत लो, तुम करके जाओ, तुम कुछ भी छोड़ो मत, क्योंकि ओ माई गॉड यू कांट लीव इट. ये देखो तुम्हारे पास क्या है, 5 दिन की छुट्टी है, उसमें हो जाएगा. तो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू. डोंट गेट स्कैर्ड.
क्योंकि डोंट गेट स्कैर्ड। ओके, लेट्स कीप द फ्लो फ्लोइंग। सिविक्स आई थिंक, इकोनॉमिक्स आई थिंक तुम लोग को ईजी लग रहा होगा, और वट एवर, तो है ना, जो भी तुम्हें पहले ईजी लग रहा है तो पहले उसको ख़त्म कर लो और बाकी तुम आराम से करते जाओ। सोशल में क्या फोकस करना है? सोशल में फोकस करो NCERT और PYQs। दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन सोशल। ये मैंने तुम लोग को बताया बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज। नाउ लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस कि अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो क्या करें।